Good morning, my dear students. I am Rajeshwari Patra, your EVS teacher from Kendra Vidyalaya CRPF Mokama Ghat. Welcomes you to my EVS class. Hope you all are well and doing all activities in a proper way and taking importance of the online classes. My dear students, in our last class we have started a new topic, Abdul in the garden. Now Abdul wondered about the roots of the grass. He found that it is not easy to root out even a small grass because it has long roots and the roots grip the soil very tightly. My dear students, in the same way, I have also told you that there are some roots which are used as vegetables. Okay? And some of the examples are radish, carrot, beetroot, turnip, like this. My dear students, in this question, you are given that Abdul wondered when he saw radish was a root or not. Why did he think so? So, its answer will be Abdul thinks so because the radish is also looks like a thick root of the plant. Now, here some of the vegetables drawing were given. Look at the pictures below and find out which of these vegetables are roots. You have to find out that which vegetables will be called as the roots. Now see, in the first picture you are watching that there is a brinjal, and brinjal is the fruit part of the plant. Thereafter a carrot. Yes, carrot grows under the ground and this will be called as a root. The next one is bottle gourd. Bottle gourd will not be called as a root. Cauliflower, it's the flower part of the cauli plant. And the next one is a stem part of the plant. Now, the radish will be called as the root part of the plant. Tomato will never be called as the root. It is called as the fruit part of the plant. Thereafter, beetle gourd will be called as the fruit part of the plant. Thereafter, a beetroot will be called as the root part of the plant. Thereafter, cabbage is given, and cabbage is the leaves part of the plant. Okay, this is covered with leaves. Now Abdul has some more questions. Nowadays Abdul keeps thinking about all the plants that he sees. Abdul is very curious to know all things or all plants and try to know more about the plants. Abdul saw a plant growing out of the wall in a school. He wondered how deep must the root of this plant be going. इसका रूट कहाँ तक गया होगा ना. आपने भी देखा होगा हमारे विद्यालय में भी जहाँ वाटर टैंक है उसके बगल में बहुत सारे प्लांट्स ऐसे ही ग्रो किए हैं. ठीक है, जो कि मिट्टी से ग्रो नहीं किए हैं बल्कि ये सब वॉल से ग्रो किए हुए हैं. इसका रूट कितने लंबे
लंबा का हो सकता है, जरा अंदाजा लगाइए. सो इट्स रूट्स मस्ट बी अराउंड 15 to 20 centimeters. How do the roots get water? The roots get or collect water from the rain as well as from the underground. How big will this plant grow? This plant never grow as a plant that grows in the land. It will grow, but it will not grow like that as of a plant growing in the land. What will happen to the wall? The wall will be cracked. Okay, इसके द्वारा क्या होगा, दीवार में दरार आ जाता है. Can you give the name of the plant in this picture? Yes, it's a people plant. Now, have you ever seen a plant growing from the crack in a wall? Yes, you have seen that. There are many plants that are growing from the cracks of the wall. So, you have to write down where was it. It is in our Vidyalaya campus. You have seen that in the near the water tank. There is a wall, big wall which is cracked, and a banyan tree and a peepal tree growing there. Okay. What were some of your questions? Ask your elders and find out the answers. Find out the name of the plant you saw. जो प्लांट आपको मिल रहा है, आप अपना घर की चारों तरफ देखिए कि कहीं ऐसे ये पीपल प्लांट के जैसे कहीं छत से हो या कोई बड़ा दीवार से भी कुछ पेड़ पौधे उगे हैं क्या, वो कौन सा पौधा है उसके बारे में पता करिए. Abdul saw a huge tree that had fallen on the roadside. He remembered the neem tree in his courtyard. He could see some of its broken roots. Abdul thought, would someone have uprooted such a big tree, or would it have fallen on its own? देखो बच्चों, यहाँ पे जितना बड़ा चित्र दिया हुआ है, जो रूट्स हम लोगों को दिखाई दे रही है, ये किसी के द्वारा उखाड़ा नहीं गया होगा. अगर हो सकता है आजकल मशीन के द्वारा भी ट्रीज को ड्रैग आउट की जाती है, but as the picture shows, it must be fallen but by its own. ठीक है. How old would this tree be? This tree must be 400 to 500 years old. है ना. Abdul, on seeing a tree surrounded by cemented ground, thought that how will it get rainwater? अभी अब्दुल को बहुत सारा क्वेश्चंस उसके मन में आ रहा है. देखो यहाँ पे सेकंड में जो चित्र दिया हुआ है, वहाँ पे एक ट्री तो ग्रो किया है, लेकिन उसके चारों तरफ चट्टान है, फर्श है, सीमेंट का फर्श है. तो अब ये कहाँ से पानी उसको मिलता होगा? क्या उसको भी रेन वाटर्स मिलते होंगे? नो बच्चों, it must be collecting water from the underground because its roots have gone deep in the earth and must collecting water from the underground. Okay, now let's talk. Which are the oldest trees in your area? You have to do this. आपको अपने अगल बगल में देखना है और सब जो ओल्डेस्ट ट्री है वो कौन सा ट्री है उसका पता करनी है. ठीक है. फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स. आपको अपने दादा दादी हो या घर में कोई बड़ों से पूछ के उसका नाम लिखना है. नेम एनी 2 एनिमल्स हु लिव्स ऑन द ट्री. आपको उसी पेड़ में रहने वाले 2 क्रिएचर्स का नाम भी लिखना है. हैव यू एवर सीन अ बिग ट्री दैट हैड फॉलन डाउन. क्या आपने कभी देखा है एक बहुत बड़ा ट्री कभी गिरते हुए? व्हाट डिड यू थिंक व्हेन यू सॉ इट. आप क्या सोचने लगे उसको देखने के बाद? ठीक है. सो आपको लग रहा होगा कि ये तो इतना बड़ा ट्री है, इसके रूट्स तो इसके जड़ तो बहुत दूर दूर तक फैले होंगे, तो ये कैसे गिर गया, है ना. आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आते होंगे. बच्चों, सवाल आना और बुजुर्गों को पूछना या टीचर्स को पूछकर उसको हल निकालने का काम भी आप लोगों का ही है.
Now we are going to read about the unusual roots. Have you sung from a banyan tree? क्या आपने बरगद के पेड़ के जो अनयूजुअल रूट्स होते हैं वहाँ पे कभी झूला झूला है? What did you hold to swing? आप क्या पकड़कर झूलते हो उसको? What looks like the hanging branches are actually the roots of the tree? क्या आपको लगता है कि ये जो hanging branches है ये उसके roots है? These grew down from the branches until they reached the ground. ये सब जो ब्रांचेस से निकलता है ये सब जब तक ग्राउंड तक पहुंचने तक लंबा होते हैं. दीज रूट्स आर लाइक पिलर्स दैट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द ट्री. ये सब पिलर के जैसे काम करते हैं. घर में जैसे घर को मजबूत से बनाने के लिए हम लोग पिलर का इस्तेमाल करते हैं ना बच्चों, बिल्कुल उसी तरह ये जो रूट्स होते हैं इसके अनयूजुअल रूट्स जो होते हैं वो सब ये बैनियन ट्री को सपोर्ट करते हैं. ये बहुत बड़ा पेड़ होता है और ये बहुत सालों पुराना होता है. ठीक है, उसको सपोर्ट करने के लिए ये सब व्यवहार जो है जड़ है उसको सपोर्ट करते हैं. ठीक है. द बैनियन ट्री ऑल्सो हैज़ रूट्स अंडर द ग्राउंड. बैनियन ट्री का जो अंडरग्राउंड रूट्स भी होते हैं जस्ट एज द अदर ट्रीज है. जैसे दूसरे ट्रीज के होते हैं बिल्कुल बैनियन ट्री का भी वैसे ही होता है. यू नो देर इज़ लॉ अगेंस्ट कटिंग द ट्रीज. जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि हंटिंग के अगेंस्ट में कुछ लॉज है. हम लोग हंटिंग नहीं कर सकते हैं, शिकार नहीं कर सकते हैं. ठीक है. सो आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि कुछ नियम ऐसे भी है. आरटीई में पढ़ा है ना आप लोगों ने, राइट टू एजुकेशन में, कि आरटीई के इन द चैप्टर अनीता एंड द हनी बीज में आपने पढ़ा है कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के सारे बच्चों को सरकार मुफ्त में शिक्षा देती है. ये सब नियम हम लोगों को सुरक्षा देने के लिए बनाया जाता है. क्या आपको पता है आप भी पेड़ को यूं मन चाहे नहीं काट सकते हो. पेड़ को काटने के लिए भी नियम कानून बने हुए हैं. अगर आप कोई भी पेड़ पौधों को यूं ही काट दोगे तो आप ये मत समझना कि आपने होशियारी वाला काम कर लिया. आप लोगों को इसके लिए जुर्माना भी देना पड़ेगा. साथ ही साथ आप लोगों को जेल भी जाना पड़ेगा. देयर वॉज अ ट्री ग्रोइंग क्लोज टू द लैम्प पोस्ट. ठीक है, लैम्प पोस्ट के पास एक ट्री बढ़ रही है. द ट्री वॉज फुल ऑफ लीव्स दैट द लाइट ऑफ द बल्ब वॉज ब्लॉक्ड. पीपल फेल्ट that the branches of the tree needed to be trimmed. Before they do this, they need to take a written permission from the government office. देखो बच्चों, जो स्ट्रीट लाइट होते हैं उसके नीचे एक बहुत बड़ा पेड़ है. ठीक है, और इसी के चलते जैसे कि पेड़ बड़ा है और बहुत सारे पत्ते ब्रांचेस के कारण क्या होता है, जो बल्ब की रोशनी नीचे तक नहीं पहुंच सकती है. तो लोगों को ये महसूस हुई कि चलो ये ट्री के ब्रांचेस को कुछ कट कर देते हैं, कुछ ट्रिम कर देते हैं. ठीक है. लेकिन लोगों ने यूं ही कट नहीं कर दिया. वो लोग सरकार के जो ऑफिस होते हैं, सरकार का जो दफ्तर होती है, वहाँ से रिटन परमिशन लिख के परमिशन लाए कि ये ट्री के ब्रांचेस बढ़ने के कारण हमें ये सब असुविधाओं का सामना करनी पड़ती है. तो इसीलिए हम इसके ब्रांचेस को थोड़ा थोड़ा कटवाना चाहते हैं. हमें इसी के लिए अनुमति दी जाए. तो ऐसे आप पत्र लिखते हो ना, बिल्कुल रिटनली वो एविडेंस बनाए उसके बाद ही कट किए. हैव यू सीन एनी ट्री विच रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस. क्या आपने कभी देखा है कोई दूसरा ट्री को इसके रूट्स जो है उसके ब्रांचेस से ग्रो करते हुए? नाउ यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही बच्चों. थैंक यू वेरी मच.